Hello, how are you students? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosif sir. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 7, Control and Coordination. In this chapter, student, we will study about the basic coordination and controlling system of our body with the brain. How the brain will control our body movements and certain voluntary as well as involuntary actions. So let us start without wasting time. The first topic of this chapter is control and coordination. The working of various body parts for appropriate reaction to a stimuli is called control and coordination. हमारे बॉडी के बाहर जो भी चेंजेस होते हैं, कोई बाहर चीज़ ठंडी हो, कोई गर्म हो, कोई कील हमें पैर में घुस जाए या तो हाथों के अंदर हमें कोई चीज़ नुकीली चीज़ हमें लगे, तो उसकी वजह से जो भी सेंसेशन हमें महसूस होती है उसके सामने रिस्पॉन्ड करने का काम जो भी सिस्टम करती है, इट इज़ कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. This system is controlled by the nervous system. Means the basic functional part of the control and coordination system is a nervous system. I think you have heard about this word nervous system. Nervous system एक ऐसी महत्वपूर्ण और एसेंशियल सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर कि जो हर एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई के सामने रिस्पॉन्ड करने का काम करती है. फॉर दिस फंक्शनिंग of this nervous system, there are another subsystem is present inside our body which is known as the receptors. The various receptor present on body organ to supply the signal to the brain via nervous system. So let us know what is a receptor. Basically, in our skin, in our nose, in our ear, there are certain sensory organs are present which will sense the external information that the noise is very high or very low, someone is touching us, some smell is taking by our nose by the far distance. So this kind of sensations or the change in the environment is sensed by the organs which is known as the receptors, and it will a possible organ, it is a responsible organ for the various kind of sensations. Now let us talk what are the types of receptor, where are they located, and what is the function of the receptors. First receptors are a gustatory receptor. Gustatory receptors are basically located on the surface of the tongue, and it detects the taste whether the substance is sour or it is a bitter, it is sweet, or the mixed taste is having. तो अलग अलग फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम ये गैस्टरी रिसेप्टर्स करते हैं. सेकंड वन इज ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स. ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स जो है उनका लोकेशन होता है हमारे नाक में, इनसाइड द नेजल एपिथेलियम, इसे आप नोज भी कह सकते हो, विच विल डिटेक्ट द स्मेल, यानी कि कोई बाहर से आ रही महक को, बदबू को ये सेंस करने का काम करते हैं ये रिसेप्टर्स. सो देर आर टू काइंड ऑफ वेरियस रिसेप्टर्स दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. थर्ड इज अ थिग्मो रिसेप्टर. थिग्मो का मतलब होता है टच. सो द रिसेप्टर्स विच विल सेंस द टच इज कॉल्ड एज द थिग्मो रिसेप्टर. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी स्किन, यानी कि हमारे स्किन के ऊपर अलग अलग जगहों पे ये लोकेटेड होते हैं. फोर्थ इज अ फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स विच इज लोकेटेड इन आवर आई, विच विल डिटेक्ट द विजन. ये ज़्यादा लाइट आ रही है, कम लाइट आ रही है, या तो कोई चीज़ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, ये रिसेप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, विच इज़ कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर. फिफ्थ इज़ अ ऑडियो रिसेप्टर. ऑडियो रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड अवर ईयर. हमारे कानों के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसे ऑडियो रिसेप्टर कहा जाता है, विच इज़ डिटेक्टिंग द साउंड, वेदर द साउंड वॉल्यूम इज़ हाई और लो, whether it is a noise or a pleasant sound. This detection takes place by the audio receptors.
Then after students, certain nervous system is present. So let us talk about the definition of the nervous system which control and coordinate the body functions is called nervous system. The functional unit of the nervous system is neurons. As we know inside the chapter number 6 when we studied the digestion in the human being, in this section we have talked about the kidney, and inside the kidney nephrons are the functional unit. So basically inside the nervous system neurons are the functional unit. The basically neuron system is made up of various kind of small units called neuron, consist of cell body, dendrites, axon, which is the largest cell inside our body. So student, न्यूरॉन जो है हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया था इसके बारे में, टिश्यूज़ के अंदर टाइप्स ऑफ सेल के अंदर ये एक प्रकार के न्यूरॉन सेल इसे कहा जाता है. दिस इज़ द फिगर ऑफ न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन की फिगर है कि जिसके अंदर न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स, उसके लोकेशंस हमें बताया गया है. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन. फर्स्ट इज़ द सेंसरी ऑर्गन डेंड्राइट, second is nucleus of the cell, third is cell body. This entire chain like structure is together called as axon. This single structure is called as myelin sheath. ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है. ये है एक्सन टर्मिनल. इसे एक्सन टर्मिनल नहीं कहते, सॉरी, इसे कहा जाता है नर्व एंडिंग. इसे क्या कहा जाता है? नर्व एंडिंग. ओके, सो दिस आर द कंपोनेंट ऑफ द न्यूरॉन सेल. लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस न्यूरॉन सेल. फर्स्ट इज द सेल बॉडी. It is the central portion of the neuron that contain nucleus is called the cell body. The cell body consists of the nucleus. Okay. Second one is dendrites. Dendrites जो है वो क्या करते हैं कि रिसेप्टर्स में से जो सिग्नल सेंस होते हैं उन सिग्नल्स को न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम ये रिसेप्टर्स जो है ये सिग्नल न्यूरॉन को पहुंचाते हैं, और न्यूरॉन में ये सिग्नल फर्स्टली डेंड्राइट्स पे सेंस होता है. यहाँ पे डेंड्राइट्स जो है वो एक प्रकार के सेल के एक्सटेंशंस है विच आर शॉर्टर, ब्रांच्ड एंड मोर न्यूमरस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. यानी कि एक सेल के अंदर कई ज़्यादा क्लस्टर्स होते हैं डेंड्राइट्स के कि जो बेसिकली स्किन के ऊपर हर एक रिसेप्टर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और रिसेप्टर्स में से जो सिग्नल आते हैं उसे सेंस करने का काम ये डेंड्राइट्स करते हैं, जो छोटे छोटे ब्रांच्ड एक्सटेंशंस होते हैं. दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इट टुवर्ड्स द सेल बॉडी. यानी कि अलग न्यूरॉन में से या तो रिसेप्टर में से सिग्नल लेने का काम करते हैं और इसे सेल बॉडी तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं. उसके बाद है एक्सन. एक्सन कंडक्ट्स द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड ट्रांसमिट्स टू अनदर सेल. एक्सन जो है वो मैसेज को सेल बॉडी से अलग ले जाता है और दूसरे सेल में ट्रांसमिट करता है. यानी कि डेंड्राइट्स जो है यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट में से सेल बॉडी तक ये जाता है और सेल बॉडी में से बाद में एक्सन जो है इसे आगे बढ़ाने का काम करता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ द नर्व सेल्स. नर्व सेल्स का वर्किंग किस तरीके से होता है? फर्स्ट इज द जनरेशन ऑफ इम्पल्स. जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली एक प्रकार के सेंसिंग ऑर्गन है, जैसे हमने पहले पढ़ा. ये सेंसरी ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं डेंड्राइट्स को कि व्हाट द थिंग इज हैपनिंग, वेदर द टच इज डिटेक्टिंग, वेदर द स्मेल इज डिटेक्टिंग, और एनी काइंड ऑफ साउंड इज डिटेक्टिंग, अदर else the vision is detecting. Okay, then after the detecting, it will transmit the signal to the dendrite tips.
and this information is received at the end of dendrite tips. Electrical impulse means a certain kind of impulse, a small blinking of the information is generated by sets of chemical reaction. यानी कि डेंड्राइट के ऊपर एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं. इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट होने से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे बढ़ती है. नाउ सेकंड इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. The nerve impulse generated at dendrite tips travel from dendrite to cell body. जो ये nerve impulse generate हुए, impulse जो generation हुआ, वो dendrite से cell body तक transmit करता है, ठीक है? Then this impulse travel from cell body to the axon and finally reaches to nerve ending. तो पहले डेंड्राइट के अंदर इम्पल्स जनरेट हुआ, बाद में वो सेल बॉडी पे पहुंचा, एक्सन में से पास ऑन होके वो फाइनली नर्व एंडिंग तक पहुंच गया सिग्नल. एंड आफ्टर द नर्व एंडिंग देयर इज अ गैप इन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स. यानी कि हमारे शरीर के अंदर लाखों न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहाँ पे कनेक्ट होता है उसके बीच में जो गैप होता है ना, उसे सिनेप्स कहते हैं. द सिनेप्स इज द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन द टू नर्व्स. यानी कि दो न्यूरॉन सेल के बीच का ये एक प्रकार का जंक्शन है कि जहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन की आप-ले होती है. किस मैनर में होती है, चलिए देखते हैं. जो इम्पल्स जनरेटेड होके नर्व एंडिंग तक आया था वो अब केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फॉर द ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, बिकॉज अ हाई अमाउंट ऑफ external force is required to jump the electrical impulse, but it is not present. वहाँ पे इस प्रकार का कोई फोर्स होता नहीं है. So the sets of chemical reaction is generated, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद केमिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं. यानी कि एक न्यूरॉन का ये एंडिंग है, ठीक है, और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है. तो यहाँ तक सिग्नल्स जो थे वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में थे. अब यहाँ से जो जंप करेंगे ना, वो केमिकल सिग्नल के फॉर्म में जंप करेंगे. ओके, दिस विल जंप इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल, ओके, फॉर द ऑनवर्ड ट्रांसमिशन. और इन दोनों न्यूरॉन के बीच का जो ये गैप है, इस बीच के गैप को कहा जाता है सिनेप्स. ओके, इट इज द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स. तो बेसिकली न्यूरॉन सेल्स और द नर्व सेल्स. अब तीन तरीके की नर्व्स होती है हमारे शरीर के अंदर. एक होती है सेंसरी नर्व्स विच कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. यानी कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में से सिग्नल या तो इन्फॉर्मेशन लेके वो ब्रेन तक पहुंचाती है, उसे सेंसरी नर्व कहा जाता है. एक होती है मोटर नर्व. मोटर नर्व क्या करती है कि जो एक्सटर्नल चेंज रिक्वायर है, यानी कि हमें कोई एक्सटर्नल रिस्पॉन्ड करना है, हमें कोई चीज़ गर्म लगे तो हमें वहाँ से हाथ हटा लेना है, तो उसको एक्चुएट करने के लिए होती है मोटर नर्व्स. ओके, विच विल ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू सेंस ऑर्गन, कि जो ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक मैसेज ले जाने का काम करती है. तो एक बॉडी में से ब्रेन तक ले जाने का इन्फॉर्मेशन को काम करती है सेंसरी नर्व्स, और एक होती है मोटर नर्व्स विच विल सेंड इन द सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी ऑर्गन. ओके, एक होती है रिले नर्व विच सर्व द बोथ फंक्शंस. इट विल कैरी द मैसेज फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू द ब्रेन एंड also supply the signals from brain to the body organs. Both the functions are done by the relay nerve. Okay, रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. तब तक थैंक यू.